بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں مولوی ماری دنیا برباد کے دن ایک سال ہوئی گئے مولوی صاحب پہ آئے تنی بھر پیٹوا نکل جاتا کہا ارے تو نہیں آئے گی مولوی صاحب, ہیں تو نہیں آئے گی مولوی صاحب, بھائی دیکھو مولوی وہ کھائے بہو رات ہے. خدا کی قسم اس سے اچھا تو ایک مزدور ہے جو 600 میں مزدوری کرتا ہے اور دن بھر جا کے اپنے گھر پہ سکون کے ساتھ سوتا ہے اور کھاتا ہے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو نیند سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشگی کے لیے نہیں بس آدھے گھنٹے کے لیے. علم کی فضیلت کیا ہے اور ایک عالم کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ آج ہم نے جو ہمارا سماج جو ہے, ہماری سوسائٹی جو ہے, ہمارے بزرگان دین جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے عالموں کو کھلونا سمجھ لیا ہے, ماشاءاللہ انہوں نے عالموں کو پیر کا دھول سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ پیر کے دھول نہیں ہوتے ہیں, یہ تمہارے سر کا تاج ہوتے ہیں. اگر مانا جائے تو اور ماننا ہی پڑے گا, کیونکہ جسے نبی نے مانا, جسے نبی کی حدیث نے مانا, العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب دیا گیا, اسے خطاب دیا گیا, تو اسے ماننا تو ہم پر واجب ہے. لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیے, غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, عبادت کر رہے تھے. اتنے میں پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ. حالانکہ یہ سیرت کا ہے لیکن یہ علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے رسول کو زور سے دبایا, اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبایا, بڑی زور سے دبایا. اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے زور سے دبایا, بڑی تکلیف ہوئی. اب بتائیے جس نبی کو علم حاصل کرنے کے لیے اتنی تکلیف ہوئی, جس نبی کو علم حاصل کرنے کے لیے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہیں دبایا گیا, انہیں دبوچا گیا, آج ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں جب پڑھانے کے لیے. جب کوئی عالم مارتا ہے, ڈانٹتا ہے, تو کچھ جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں, لیکن جو ان پڑھ گمار ہوتے ہیں, جن کے پاس دولت زیادہ ہوتا ہے, دولت کے غرور ہوتے ہیں, لنگیاں باندھ کے پہنچ گئی ہیں مدرسہ میں. مولوی صاحب کے سینوں چڑھ لی ہیں درد رکھ, کیسے مارے ہو میرے بیٹوں کو, کیسے مارے ہو, کاہے مارے ہو, چلے لیے تھے مولوی صاحب کے سینوں پہ. بتائیے کتنی بے غیرت کی بات ہے کہ آج وہی آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے, وہی آپ کے بچے کو قرآن سکھاتا ہے. اگر آپ کا لڑکا قطر جا رہا ہے, سب سے پہلے پپا سیلری پوچھیں کتنا سیلری ہے, 1200, ہاں نہ ٹھیک ہے, 1500 پھر بھی نہ ٹھیک ہے, 2000 ریال چلو کچھ ٹھیک ہے, اوور ٹائم کے لیے پورا ہوئی جی. معزز سامعین اکرام, جب تمہارا لڑکا بدیش جاتا ہے وہ 1500 1000 کی سیلری میں تمہاری گنجائش نہیں ہوتی ہے, تمہارا گزر بسر نہیں ہوتا ہے, تو بتاؤ ایک عالم دین جو 10 سال 12 سال مدرسے کے اندر سوکھا چاول کھا کے آتا ہے, پتلی دال اور بغیر سبزی کے کھانا کھا کر جب تمہارے گاؤں میں آتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں پوری سمیتی بیٹھ جاتی ہے مولوی صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے. بتاؤ اتنی موٹی موٹی کتابیں بیچارہ پڑھ کے آیا ہوا ہے وہاں سے, اس کی اہمیت یہی ہے, اس کی فضیلت یہی ہے. کیا ہے اس کی فضیلت؟ ایک عالم اور ایک جاہل میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی ہے. معزز سامعین اکرام, بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالموں کو, بہت مشکلوں کا, اور ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں, انہیں قرآن نہیں سکھاتے ہیں, انہیں تربیت نہیں دیتے ہیں, انہیں بورڈنگ کلاس کرواتے ہیں, بورڈنگ پڑھاتے ہیں. ہمارا لڑکا انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. پہلے وہی لڑکا جب صبح میں اٹھتا تھا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیتا تھا, آج وہی لڑکا جب صبح میں اٹھتا ہے گڈ مارننگ ڈیڈی کہتا ہے, اور وہی لڑکا جب صبح میں اٹھتا ہے موم بولتا ہے, امی سے موم بنا دیا. بتائیے ہم اس سے رحمت کی امید کیسے کریں, ہم اس سے مغفرت کی امید کیسے کریں کہ جو ہمارا انتقال ہوگا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, تو جو لڑکا آج ہم سے سلام نہیں کر رہا ہے, جو لڑکا آج ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے, وہ ہمارے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کیسے پڑھے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کیسے پڑھے گا. آج جب ہم اسے تعلیم نہیں دیتے ہیں, جب ہم اسے تربیت نہیں دیتے ہیں, جب اسے دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں, حافظ قرآن نہیں بناتے ہیں, عالم دین نہیں بناتے ہیں, اور جب بڑھاپے کی حالت ہوتی ہے تو ہم اس سے خدمت کی امید کرتے ہیں, اس سے ہم خدمت کی امید کرتے ہیں. کیسے ہم امید کر سکتے ہیں جو ہمارے بچے کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے نبی کیا ہے, قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے, ماں باپ کے فرما برداری کیا ہے, حقوق لوگوں کے حقوق کیا ہے, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے, تو وہ کیسے تمہاری خدمت کرے گا, کیسے وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا, کیسے وہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کرے گا, کیسے کرے گا. معزز سامعین اکرام, علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے
जिस तरीके से आज रूम के अंदर लाइट जल रही है, लाइट को बुझा दिया जाए, पूरा का पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा, उसी तरीके से अगर आज हमारे अंदर इल्म नहीं है तो हम अंधेरी जिंदगी गुजार रहे हैं, अंधे की तरह। हम उन्हें अंधा भी कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर तालीम ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 7 साल का लड़का है, 7 साल का तुम्हारा लड़का हो गया, कान पकड़कर उसे मस्जिद तक लेके जाओ, है ना। और अगर 10 साल का हो गया तो मार के मस्जिद तक लेके जाओ। अब बताइए 35 साल का, 40 साल का, 20 साल का, 25 साल का बाबू कतर तैयार है, अपना सूता है, अब अप्पा गए नमाज पढ़े, जोहर में मौलवी साहब नहीं है, उनके पीछे पड़ गए हैं। लड़का सो रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। सामईन इकराम, गौर करने का मुकाम है कि अगर हमारा लड़का नमाज नहीं पढ़ता है, फिक्र करने की बात यह है कि अगर हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, हमारी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, एक मर्द जो होता है वो अपने औरत का सरदार होता है, अपने औरत का अगुवा होता है। हमें हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने बच्चों को नमाज के लिए तालीम दें, हम अपने बच्चों के लिए इस्लाम की तालीम दें, हम अपने बच्चों को नबी की सीरत को पढ़ाएं, हम अपने बच्चियों को फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत को पढ़ाएं। हमने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा? हमने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज 10 साल का लड़का खड़ा होकर रोड पे सिगरेट पी रहा है, आज 10 साल का लड़का इधर उधर जाके ज़िनाकारी कर रहा है, आज 12 साल का लड़का गुटके खा रहा है। उसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप हैं। उन्हें राह रास्त पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है? राजनीति की बातों से तुम्हें फुर्सत कहाँ है? महफिलों में बैठने से तुम्हें फुर्सत कहाँ है? चौराहों पे बैठने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। तुम अपने बच्चों की तरबियत और तालीम की क्या ध्यान दो? कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा लड़का कहां जाता है, हमारी बेटी कहां जाती है, हमारा बेटा क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम 5 वक्त के नमाजी हैं तो हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बीवी नमाज पढ़ती है या नहीं, हमारे घर वाले नमाज पढ़ते हैं या नहीं, क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर? जिस घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, आज उन्हीं घरों से आप सुन लीजिए मोबाइल की आवाजें आ रही है। सुन लीजिए जाके। वो वक्त था कि लोग भाई भाई चिल्लाते थे, भाई भाई चिल्लाते थे। आज का वक्त है लोग वाईफाई चिल्लाते हैं। हाँ, तो दुनिया, हमारी समाज, हमारी सोसाइटी जो है वो अंधेर नगरी धमधूसल राजा, कटे शेर भाजी कटे शेर खाजा, हमारे साथजा बताए थे। हाँ, तो वही हाल आज हमारे समाज का है, वही हाल आज हमारी सोसाइटी का है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम मकतब में एक किताब में एक वाक़या पढ़ाते हैं बच्चों को इल्म की हैसियत से, इल्म की हैसियत से। उसमें लिखा क्या है कि इब्लीस दिन में 24 घंटे में एक बार पार्लियामेंट लगाता है और जितने उसके चेले चापट हैं सबको वो बैठाता है, उनसे पूछता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो वो एक कहता है मैं मियाँ बीवी में झगड़ा लगवा दिया, कहा बहुत अच्छा काम किया। एक ने कहा मैं बाप और बेटे में झगड़ा लगवा दिया, कहा बहुत अच्छा काम किया। एक ने कहा नमाज पढ़ने जा रहा था मैं उसको बहका दिया, वो टाइम निकल गया, खड़े खड़े बात करते रहा, नमाज पढ़ने नहीं, कहा बहुत अच्छा काम किया। एक ने कहा कि चंद बच्चे मकतब को पढ़ने जा रहे थे, चंद बच्चे मकतब को पढ़ने जा रहे थे, मैंने उन्हें बहलाकर फुसलाकर खेलकूद में फंसा दिया। अरे बहुत खुश हुआ इब्लीस, कहने लगा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, हम तुमको गले लगाते हैं, गोद में उठाया, नाचा कूदा, बहुत खुश हुआ। अब जलन तो होगी ही दूसरे लोगों को। सब उन लोगों ने कहा अरे ये छोटे छोटे बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया, इतनी शाबाशी, इतना इनाम इसको दिया जा रहा है। हमने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, हमने ज़कात देने से रोका, हमने नमाज से रोका, हमने हर चीज से रोका, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इब्लीस ने कहा आओ चलो मैं तुमको दिखाता हूं, आओ चलो मैं तुमको दिखाता हूं। इब्लीस अपने सारे चेलों को लेकर, एक जाहिल बेचारा आबिद था, नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, सब कुछ था बेचारा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। उसके दरवाजे पे दस्तक देता है, उससे सलाम करता है। वो आदमी बाहर निकलकर पूछता है आप कौन हो? कहा मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूं, मैं फरिश्ता हूं। और ये बुर्राक है। रास्ते में एक गधी पकड़ लिया और कहा ये बुर्राक है, अल्लाह को आपकी इबादत बहुत पसंद आई है, आपको अपने दरबार में बुलाया है। बहुत खुश हुआ वो आदमी, कूद कर गधे पे बैठ लिया और देखा नत्ता कूद पर बैठ लिया और चल दिया। जिब्रील आए थे, बुर्राक लेकर आए थे। अब बेचारा पढ़ा लिखा होता, तालीम होती उसको, तो उसको मालूम होता कि जिब्रील किसको कहते हैं और बुर्राक क्या है, हैं?
اور जिब्राइल इस्लाम किसके पास आते हैं उसको ये भी नहीं पता था। आओ देखा ना, तो कूद कर बैठ लिया और बैठने के बाद चल दिया। इब्लीस ने उसको ले जाकर एक नाले में, एक गड्ढे में, एक कीचड़ में उसको गिरा दिया। फिर अपने चेलों को ले जाकर एक दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई, कौन? कहा मैं जिब्राइल इस्लाम हूं और ये बुर्राक है, अल्लाह ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। वो बाहर निकला, खींच के झापड़ मारा, कहा बदतमीज, जिब्राइल मेरे पास क्यों आएंगे? वो तो नबियों के पास आते थे, अल्लाह की वही लेकर आते थे। जब नबी नहीं रहे तो अब जिब्राइल का क्या काम है दुनिया में? इब्लीस ने कहा अब तुम्हें पता चला कि एक जाहिल में और एक आलिम में क्या फर्क है, हैं? एक जाहिल के दिमाग को अगर कोई चढ़ा दे तो वो जिद्दी बन जाएगा, वो अकलबाजी करेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी वो अपने दिमाग से काम करता है, वो अपने दिलो दिमाग से सोचता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, आलिम अंबिया के वारिस हैं। और फिर एक जगह फरमाया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे खैर का काम करने वाला इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। किसको कहा? व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़ुल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहेगा इज्जत देगा और जिसको चाहेगा जिल्लत देगा। तुम्हारे इज्जत देने की हमें जरूरत नहीं है, तुम बेइज्जत ही करो। अल्लाह कहता है व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़ुल्लु मन तशा, जिसे चाहेगा इज्जत वो देने वाला है, तुम कितना भी बेइज्जती कर लो। एक साल हो गए मौलवी साहब के आए, तनी भर पेटवा निकल जाता, कहता अरे तो नहीं आएगी मौलवी साहब, हैं तो नहीं आएगी मौलवी साहब, भाई देखो मौलवी वो खा खा बहुरात है, हैं? ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आज आलिमों के लिए। ये अल्फाज पैदल आवे तो ठीक है, अगर मोटरसाइकिल से आवे तो कहीं मारे हुई हैं, कहूँ लूट लाट कर लेके आए हुई हैं। ये अल्फाज आते हैं आज आलिमों के लिए। ऐसे ऐसे अल्फाज हमारी समाज ही कहती है। चार गैर मुस्लिम बैठे रहे, चार मुस्लिम बैठे रहे, खुदा की कसम अब वो कभी अपने पंडितों को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे समाज वाले सबसे पहले आलिमों को गाली देना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ा डाकू है मियां मौलवी, मारी दुनिया बर्बाद के दिन। ऐसे ऐसे अल्काब हम इस्तेमाल करते हैं। बताइए फिर भी अपने आप को कहेंगे हम पक्का मुसलमान हैं। हदीस को झुटलाया जा रहा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, एक अंबिया के वारिस को गाली दी जा रही है, एक अंबिया के वारिस को बुरा भला कहा जा रहा है, एक अंबिया के वारिस को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, और हम चुपचाप सुन रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे होते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं, और हाँ में हाँ मिलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून यतज़क्करु उलुल अलबाब, आप कह दीजिए कि इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? एक इल्म वाला और एक बे इल्म वाला कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कह दीजिए कि इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते हैं, और नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, धीरे धीरे इस्लाम किस तरफ जा रहा है और हम किस तरफ उसे लेके जा रहे हैं, कभी हमने सोचने की कोशिश की? नहीं, हमने उसे गौर ही नहीं किया कि हम किस समाज में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। हाँ, इतना घमंड, या अल्लाह, इतना घमंड, इतना घमंड। अगर 2-3 बेटवे मलेशिया दुबई कतर चला गए और 2000-4000 रियाल कमा, बहुत बड़ा घमंड हो जाता, फिर तो उसके आगे कोई है नहीं। उठा लो तारीख को देख लो, फिरौन का वाकया देख लो, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, अपने आप को रब कहलवाने वाला, इतना बड़ा बादशाह था, अल्लाह ने उसे दरियाए नील में डुबा दिया। वो शद्दाद जिसे जो दुनिया के अंदर जन्नत बना दिया, वो शद्दाद जो दुनिया के अंदर जन्नत बना दिया, और जन्नत को देखने की उसे नसीब नहीं हुई। इतना अमीर था, इतना दौलतमंद था, उसे भी घमंड था अपनी दौलत पे, कि उसे भी घमंड था अपनी जन्नत पे, लेकिन अल्लाह ने उसे उठा लिया, जन्नत देखने की नौबत नहीं हुई। और उनका खजाना देख लीजिए, यहाँ तक कि उसका नाम आता है कि उसके खजाने की चाबी जो है वो खच्चरों पे लाद कर उठाई जाती थी, लेकिन अल्लाह ने उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। जब इतने बड़े बड़े नहीं रहे तो हमारी क्या चीज है? हम कौन से खेत की मूली? हम कौन हैं? हमारी क्या औकात है अल्लाह के नजर में? हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज अगर हमारे अंदर इल्म होती, इल्म है, तो हम एक दूसरे का टांग नहीं खींचते। हजरत तलहा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने भाई को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लड़ाई में। इस्लाम की कोई लड़ाई थी, उसमें हजरत तलहा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत हिशाम को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते उनके हाथ में एक मशकीज़ा पानी था, वो ढूंढ रहे हैं अपने भाई को, गली गली ढूंढ रहे हैं, वो मैदान में ढूंढ रहे हैं, कहां गया मेरा भाई, कहीं पड़ा होगा, प्यास से उसके हलक सूख गए होंगे, वो कहीं पड़ा होगा। ढूंढते ढूंढते जब नजर पड़ी अपने भाई पे तो वो पानी लेकर अपने भाई के पास गए, और जैसे ही वो पानी को हजरत हिशाम अपने लबों को पानी लेकर जाने वाले थे, तो वैसे ही उधर से कराने की आवाज आई, उसे चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने कहा पहले मेरे उस भाई को पानी दो, खुद नहीं पिया, पहले उनको पिलाया, फिर जैसे ही पानी लेकर वहां तक गए, वो भी पीने वाले थे, उसके बाद और दूर से आवाज आई कराने की, प्यास की। वो कहने लगे मुझे नहीं चाहिए, मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। और आज हम हैं, हम भी उसी नबी के मानने वाले हैं, वो भी उसी नबी के मानने वाले थे, हम भी उसी कुरान को मानने वाले हैं, वो भी उसी कुरान को मानने वाले थे, वो हम भी उसी रब को मानने वाले हैं, वो भी उसी रब को मानने वाले थे। फर्क नहीं था कोई, उस वक्त में ना कोई दूसरा इस्लाम था, ना आज कोई दूसरा इस्लाम है, ना उस वक्त में कोई नबी दूसरा आया था, ना आज कोई दूसरा नबी आया है। वो नबी वही थे, आज भी नबी वही थे, उनका फरमान भी उस वक्त वही था, आज भी उनका फरमान यही है। लेकिन हमारे ख्यालात बदल चुके हैं, बदले हैं तो हमारे ख्यालात बदले हैं, ना ईमान बदला, ना इस्लाम बदला, ना कुरान बदला। शायर कहता है एक ही अल्लाह एक नबी है, एक ही है कुरान, तो फिर क्यों भटक गया इंसान। वही नबी, वही कुरान, वही अल्लाह है, लेकिन फिर भी हम गलत रास्ता पकड़ के बैठे हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमने इल्म की अहमियत नहीं दी, हमने इल्म की फजीलत को समझा ही नहीं है। बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। दोस्तों, नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती है, ठीक है? ये इस्लाम का एक पावा है, एक खंभा है, जिसे हमें मजबूती से पकड़ने के लिए कहा गया है। 5 खंबे हैं इस्लाम के, इसको लेके, नमाज को लेके 5 खंबे हैं। अगर हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, 4 छोड़ दिए, नमाज पढ़ा करो, अब बुराई चौराहा बढ़ के करा करो, नमाज पढ़ते रहो, चोरी करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, ज़िनाकारी करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, ओकर बाद जब कोनो मीटिंग के तो बहुत बड़ा नमाजी है, पक्का नमाजी है। और जस्सामन इकराम, शर्म नहीं आती है। सच कहा किसने वाले ने कि हम वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, हम वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आज हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। वो इस्लाम था, वो सहाबी का दौर था कि लोग एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हमारा दौर आया, हम एक दूसरे से लड़ेंगे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तालीम ना होने की बिना पर, तालीम ना होने की बिना पर, इल्म ना होने की बिना पर आज हम एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इल्म को जानना जरूरी है। चाचा नमाज पढ़ रहे थे, हमने कहा चाचा नमाज में क्या पढ़ते हैं? चाचा नमाज पढ़ रहे हैं, हमने कहा चाचा नमाज में क्या पढ़ते हैं? चाचा ने कहा बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन आप जब खेती करते हैं 2 बीघा बिया वो खोते तो 4 मनईस पूछे जाते, बियावा कितना डाली, 2 बीघा में कितना खाद पड़ी, 4 मनई से पूछो तो 4 लोगों से आप पूछते हो। लेकिन कभी आपने मस्जिद में बैठकर इमाम के सामने दुआ नहीं पूछा, कभी मस्जिद में बैठकर कभी किसी मौलवी से आपने कोई सूरत का जिक्र नहीं किया, कभी मस्जिद में बैठकर आपने नमाज के तरकीब नहीं समझे। क्यों ऐसा हो रहा है? हम पर यह फर्ज है, हमें जिस चीज की जानकारी नहीं है हम किसी आलिम के पास बैठे उससे पूछें, लेकिन हमने आलिमों से पूछना कम कर दिया और उनकी बेइज्जती करना ज्यादा कर दिया। हमने आलिमों के पास बैठना कम कर दिया, उनसे दूरी बना ली है। हमने आलिमों के पास बैठना बंद कर दिया और उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। बताइए, हमारा लड़का नमाज नहीं पढ़ता, हमारे घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, उसके जिम्मेदार कौन बनेगा? कौन बनेगा? एक आलिम अगर नमाज ना पढ़े आपको जवाब नहीं देना है, एक आलिम अगर नमाज नहीं पढ़ता है आपको जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर आपका लड़का नमाज नहीं पढ़ता है तो पकड़ होगी, समझ लो चच्चा, पकड़े जाओगे, हिसाब व किताब दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। आपकी बेटी अगर नमाज नहीं पढ़ती है, आपकी बेटी अगर कुरान की तिलावत नहीं करती है, आप कितना भी नमाज पढ़ लिए, रगड़ लीजिए अपने सर को इसी मुसल्ले पे, लेकिन अगर आपके घर वाले दीनदार नहीं हैं, आपके घर वाले इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, आपके घर वाले कुरान की तिलावत करने वाले नहीं हैं, आपके घर वाले नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, तो तुम्हारी नमाज कोई फायदा नहीं देती है। लेकिन हमें फुर्सत कहां है दूसरों को खींचने से, हैं?
हम कब ऐसा सोचेंगे कि चलो बेटे को समझाएं? हैं? अब मजबूरी क्या आती है, बेटा हुआ मानते नहीं है। कतर से सैलरिया तोहरे खत्म आवत है तब मानत है, 1 महीना का सैलरी न दे तो पूरा हिला देवो, हैं? बाल बच्चन तक के हिला देवो तब मानत है। कह दियो 2 बीघा खेत लेके तो वो मानत है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं मानता है वो, हैं? नमाज पढ़ने के लिए कहोगे तो नहीं मानेगा, अच्छे काम करने के लिए कहोगे तो नहीं मानेगा, हैं? नमाज पढ़ के हम जाते हैं, चारपाई पे सो जाते हैं, हमारे लड़के जाते हैं वहीं पुल पे बैठ के सिगरेट उड़ाते हैं। बताइए हमारे लड़के वहां पे जाके क्या क्या करते हैं, कभी हमने देखा? मदरसे में तो पहुंच जाते हैं आलिमों के पास बांध के लूंगी, लेकिन वहां पे नहीं जाते हैं कि देखिए हमारा लड़का करता क्या है। क्यों जानते हैं? उसके अंदर दीन की तालीम हमने नहीं डाली, हमने उसे बोर्डिंग पढ़ाया, हमने उसे ऐसी जगह तालीम दिलाई जहां पे ना इस्तिंजा करने का तरीका बताया जाता है, ना माँ बाप की खिदमत करने का तरीका बताया जाता है, ना उन्हें ज्यादातर फोकस जो होता है उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये चीज करना गलत है, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर कुरान की तालीम। लेकिन मियां हाफिज और मौलाना तो कभी मत बनाना इस दौर में हाफिज और आलिम कभी मत बनाओ अपने बच्चों को, क्योंकि जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खुदा की कसम उससे अच्छा तो एक मजदूर है जो 600 में मजदूरी करता है और दिन भर जाके अपने घर पे सुकून के साथ सोता है और खाता है। लेकिन एक आलिम की जिंदगी और एक हाफिज की जिंदगी भिखारियों से भी बदतर बना दी है हमारे समाज ने, भिखारियों से बदतर कर दी है हमारे इन मुसलमानों ने, भिखारियों से बदतर बना दी है हमारे इन नाज़िमों ने, हमारे इन जिम्मेदारों ने। बहुत ही बुरी तरीके से जिंदगी गुजारा जा रहा है। एक आलिम और एक हाफिज को देख लीजिए, कोई सुकून में नहीं है। हालांकि उसे लक़ब दिया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वही है जो कुरान को सिखाता है और कुरान को सीखता है। एक हाफिज कुरान सिखाता भी है और सीखता भी है, तो बताइए उससे बेहतर इंसान हम हैं? कौन है? हम हैं। लेकिन तब वो दूध ढोल ने वो माजर हम रहे हैं, कुल गलत मौलवी साहब हैं, सारे के सारी गलती मौलवियों की है, आलिमों की है। हाँ सही है, वो आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपको रमजान में तरावी पढ़ा रहे हैं, आपको जुमा के दिन आधा घंटा सुनाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, गलती तो है ना। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इल्म की फजीलत को समझो, इल्म की फजीलत को समझो, आलिम को मत समझो, उसके इल्म को समझो। वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो तुमसे बेहतर समझता है, ठीक है, क्योंकि उसे दीन की तालीम है। और दुनिया के अंदर अगर कोई डरने वाला सबसे ज्यादा है तो एक आलिम ही डरता है सबसे ज्यादा अल्लाह से। आप देख लीजिए, वही इस्लाम को आगे बढ़ाता है, वही इस्लाम की तालीम को आगे तक लेके जाता है। आप क्या करते हैं? हम ज्यादा दोहनी तक चले जाते हैं बस, और वो भी किसी को अपनी जुबान से कभी हमने ये नहीं कहा कि सुबहान और रब्बियल आला कह दिया करो, कभी हमने ये चीज नहीं सिखाई। तो बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि इल्म की फजीलत को समझो और आलिम की अहमियत करो। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा इल्म को उठा लिया जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा और जनाजे पढ़ने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे तो एक चीज खत्म कर दी गई है। हमने देखा है कि पहले जब मगरिब की अजान होती थी तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम सब लोग ऐसे मस्जिद के दरवाजे पे पानी लेके कुछ खाने वाली चीज लेके खड़े रहते थे, दुआ के लिए खड़े रहते थे, हम जब छोटे थे। लेकिन आज वो चीज खत्म हो गई है। आज ना बेचारे को नमाजी पे भरोसा है, ना हाजी पे भरोसा है, और ना बुजुर्गाने दिन पे भरोसा है, ना जवानों पे भरोसा है, किसी पे भरोसा ही नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कौन तकब्बुर कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा ही खत्म हो रही है। और हर समाज में पहले वो वक्त था कि बड़ी बड़ी जब दाढ़ी होती थी तो उसे बुलाते थे मीटिंग में, महफिल में, कि चलो ये हाजी है, ये नमाजी है, इसके पास दाढ़ी है, अल्लाह का नूर है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आज का वक्त ऐसा बदल चुका है कि ये लोग का तो लम्बे रखो, ये सबके एकदम दूर रखो, दूर कर दिया गया है इन लोगों को, क्योंकि इनके अंदर झूठ और बेईमानी और मक्कारी कूट कूट कर भर जाती है। ईमान खरीदना है एक कप चाय पे और एक पान पे खरीद सकते हैं। कहीं भी बोलो, किसी भी जगह पे बोलो, साइन करेंगे, अंगूठा लगा देंगे, बस चाय बोलो, पान बोलो, इतना अगर खाने के लिए मिल जाए तो काफी है। अपने ईमान को मत बेचो, अपने किरदार को मत बेचो, अपने ईमान को मत बेचो। तारीख उठा के देखो, ईमान ही के लिए लोग कितने मुसीबत और परेशानी उठाए थे। आज वही ईमान हमने सस्ता बना दिया है। कहने की तो बहुत बातें थी दोस्तों, इंशाअल्लाह
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا